Hello, good morning, everybody. So, welcome once again in today's class, which we will be starting. It will be basically Indian economy component. Okay. So, briefly and quickly, in first 5 to 7 minutes, I'll tell you why you should read economy and how you should read economy. Because one of the most important concept of one of the most important component of your exam in civil services is the Indian economy portion. Okay. So why you should read this and how much you should read this and how you should read this. ठीक है? हाँ. First of all, Indian economy is a component in which you study the economic system of whole India. Okay, you study economic system of whole India. In Indian economy, you study economic system of India. Okay, and you don't study only in India at national level, but at global level also. You get the point. Now, why you should study it? Every year in IAS preliminary exam, it is ranging from 15 to 18 questions directly from Indian economy. 15 to 18 questions means more than 40 marks. Okay, sorry, if 2 mark question is there, then it is basically 30 to 40 marks and cutoff is 55 to 60 marks. So you should understand that it is one of the most vital components of your general studies. Even in your state civil services exam, every year 10 to 12 questions are there. Every year, if you check previous year question papers, 10 to 12 questions in prelims, first of all. So this is a non-skippable component. Non-skip, you cannot skip at any cost. Number one. Number two, in mains, every year, there are questions around 150 to 200 marks in one or the other way related to economy. Number two, this is the reason. Okay, so first reason why you should study economics, 15 to 20 questions in prelims. Okay, in your GS paper 3, around 150 to 180 or 200 marks directly related to your economy component. Clear? So you can say how important it is. Okay, and when you study economics, it gives basically huge content. It gives you huge content for other components as well. For other components as well. It gives you rich content for other components as well. So what I am telling you, it gives huge and rich content for your other papers as well. So it is very, very important as a component of civil services. Clear? Now, how you have to prepare it? There are 2-3 important things. Okay, resources I am writing here. Huh? Resources. Okay. See, there are a lot of books written by a lot of authors about Indian economy. Okay. Ramesh Singh is one author who has written a book. Okay. Then there are some conceptual flaws in that book. There is a Dutt and Sundaram, Uma Kapila, then Mishra and Puri, even Sriram Srirangam. There are number of books which are written for the civil services exam. Civil services exam के लिए Sriram Srirangam has written one book. बाकी सारी ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बुक है. So you don't get precise content to the point content. ठीक है? तो इसके लिए रिसोर्सेज में मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें ही सजेस्ट करूंगा जो आपको खुद से 2 चीजें खुद से खरीदनी है. बाकी मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा. ठीक है? NCERT of 11th standard. उसका नाम है India's economic development. India's economic development. Okay. India's economic development. Okay. So India's economic development is one book. NCERT की छोटी सी किताब है. ठीक है. Second book is basically NCERT class 12th. That is, there are 2 books. One is introductory macroeconomics and one is introductory microeconomics. All you have to do is macroeconomics. Introductory macroeconomics. I'm talking about macro, not micro, right? So introductory macroeconomics is very important book. Okay. And if you read them very good. If you don't read them, even better. Why I am telling you even better? Because after this, you will have to read the class notes. And if you read the class notes from A to Z, and if you remember them, if you revise them, no need to read any book. Particularly for economics, no need to read any book. Okay. The thing which I'll teach every day, you should basically revise it every day on daily basis. On daily basis. Because once you revise it,
every next day you will feel some content in your inside you. Okay, same goes for history, same goes for polity, same goes for geography, same goes for all other components. Okay, whatever is being taught here in this class, आपको वो उसी चीज को अगले दिन पूरा रिवाइज करके आना है. बिना रिविजन्स के यू कांट बेसिकली डू एनीथिंग. ठीक है, क्योंकि पढ़ना इज गुड बट रिविजन करना इज मस्ट. अगर पढ़ाई की रिविजन नहीं किया, इट इज यूजलेस. इट इज यूजलेस. ठीक है. हाँ, तो इतना समझ में आ गया आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहिए और पढ़ना कैसे चाहिए. ठीक है. इसके अलावा क्लास नोट्स में मैं आई टेक बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. ये हर साल का अलग होता है. ठीक है, जैसे इस साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट अभी आ गया है, उसकी क्लासेस चल रही हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट मैं खुद ही अपडेट करा दूंगा आपके नोट्स में ही, तो कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इन द कमिंग डेज आई स्टार्ट बेसिकली टेलिंग यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स. ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना? न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते तो लेना शुरू करो. अभी 2-3 दिन लेना शुरू करो, उसके बाद लेकर आओ मेरे पास, मैं बताना शुरू करूंगा पढ़ना कैसे. ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले आर्टिकल जितने भी है वो आपको क्लासेस के बाद ही समझ आएंगे. क्लासेस से पहले 50% भी नहीं समझ में आएगा, 30% समझ में आएगा क्लासेस से पहले. ठीक है. हाँ, तो इसलिए ये चीजें जो है इनको फोकस करना रहेगा. ठीक है, so this is the area where you have to focus and this is the way how you have to go with it. This is the way how you have to go with it. ठीक है. हाँ, तो अब इसके बाद किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए, so now we will begin our discussion with Indian economy. With Indian economy, जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड की है कुछ देर, they bear with me बिकॉज पहले मैं वही चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो ऑलरेडी डिस्कस हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि हमारे पास कुछ नए बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दूंगा. ठीक है. हाँ, तो बताओ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कौन बताएगा? पुराने वाले बच्चों को छोड़ के आप लोग दिमाग में इकट्ठा कर लो, लेकिन बोलना नहीं है. आप नए वाले बच्चे बताओ इकोनॉमिक्स क्या है? गुड. मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री. आपने 3 चीजें बताई है ना, मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री. वेरी गुड. आप बताओ कुछ भी. आप कुछ लोग बोलते हैं सर हमें बोलना नहीं आता है. हम सिखाते ही क्लास में ही है वो चीजें ना, कुछ भी बोल दो बस. हाँ, ठीक है, फेयर एनफ. आप बताओ कुछ भी दिमाग में आ रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में. इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में होती है, इतना ही बता दो जस्ट. किस चीज के बारे में हो सकती है इकोनॉमिक्स? इतना तो पता ही है कि उसमें पैसे से रिलेटेड बात होती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड बात होती है, गुड्स, सर्विसेज, क्रॉप्स, ये सारी चीजों के बारे में बात होती है. इतना तो कोई भी बोल सकता है, बोलना है, चुप नहीं रहना. हाँ, बजट, हाउ रिसोर्सेज आर मैनेज. बजट में रिसोर्सेज तो रहते हैं, पैसे कहाँ खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है ना. आरचे आप बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. फाइनेंस, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आप बताओ दीपशिका. हाँ, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, आप बताओ. कंजम्पशन, एक चीज मिसिंग थी. अब जितने भी लोगों ने आपने बोला ना इकोनॉमिक्स ये सब कुछ है. कोई भी अपनी जगह गलत नहीं है, सारे अपनी जगह सही हो. ठीक है, लेकिन सारे अपनी जगह डेफिसिट में हो. डेफिसिट में मतलब कॉम्प्रहेंसिवली किसी ने नहीं बताया एक पॉइंट में सारा. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. ठीक है, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है थोड़ी देर में मैं आपको अलग से ही बता दूंगा. ठीक है, अब इसमें भी जो फादर है इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ नाम है उनका. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, वो क्या कहता है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस of wealth, is the science of wealth. अब फिर लोगों ने उसको पूछा वेल्थ क्या है, मतलब वेल्थ. तो उसने कहा वेल्थ भी गुड्स एंड सर्विसेज ही है. वेल्थ क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें आपका मनी भी आता है, एसेट्स भी आते हैं, बाकी चीजें भी आती है. ठीक है, तो वेल्थ इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट. इसको इसी तरह लिखते रहो जैसे मैं लिखा रहा हूं. वेल्थ इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट. वास्ट कॉन्सेप्ट. इट इंक्लूड्स मनी प्लस assets. Okay,
एसेट्स में यू कैन से गुड्स, sorry, you can say tangible assets, and you can say नॉन टेंजिबल एसेट्स। जो पुराने वाले बच्चे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला कि कॉपी नहीं बनानी है। नॉन टेंजिबल एसेट्स, अब गौर से सुनना, ठीक है। देखो, मैंने पूरी इकोनॉमिक की डेफिनेशन को थोड़ा इलेबोरेट करा है, अब मैं इसी में कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। पहले तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ इज ए वास्ट कॉन्सेप्ट विच मीन्स मनी एंड एसेट्स, ठीक है। मनी का हिंदी वर्ड क्या है? धन, पैसा, ठीक है। एसेट्स का हिंदी वर्ड क्या है? एसेट्स का नहीं, वो कैपिटल। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी, ओके। मे बी लैंड, मे बी समथिंग एल्स, ओके। सो मनी और एसेट्स का एक इकट्ठा होकर क्या बनाता है? बेसिकली वेल्थ बनाता है, ठीक है। वेल्थ इज समेशन, वेल्थ इज बेसिकली, वेल्थ इज इक्वल टू समेशन ऑफ मनी एंड एसेट्स। वेल्थ इज द समेशन ऑफ मनी एंड एसेट्स। यू गेट द पॉइंट? ओके, नाउ एसेट्स में क्या लिखा मैंने? टेंजिबल एसेट्स होते हैं और नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप फील ही तो कर रहे हो, दिमाग में कैप्चर ही तो कर रहे हो, नोट तो कर रहे हो कॉपी में, पर क्या मेरा जो पढ़ाना है इसे टच कर सकते हो? कहीं मेरा पढ़ाना इस क्लासरूम में किस जगह पे है? कहीं टच करके बताओ किस जगह है? पूरी क्लास में है, सब आपके कानों में जा रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है, आपके कानों में पड़ रहा है, आपके दिमाग में पड़ रहा है, आपकी नोट में उतर रहा है, पर वो ना दिख रहा है ना आप उसे टच कर सकते हो। इट इज ऑल्सो एन एसेट, एजुकेशन इज ऑल्सो एन एसेट, बट इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस। सो नॉन टेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते उसमें क्या आती है? सर्विसेज। उसमें क्या आती है? सर्विसेज। टेंजिबल एसेट जिन्हें आप छू सकते हैं उनमें क्या आती है? गुड्स। अब गुड्स में भी आगे मूवेबल गुड्स, नॉन मूवेबल गुड्स, लैंड आपका नॉन मूवेबल गुड है, ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेटर एंड बाकी चीजें ये आपकी मूवेबल गुड्स है। गोल्ड इज अ मूवेबल गुड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये गुड्स और सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज हमेशा से इकोनॉमिक्स में तो है नहीं, हमेशा से प्रेजेंट तो नहीं होती। अनलेस यू प्रोड्यूस देम दे आर नॉट अवेलेबल। सिर्फ नेचुरल गुड्स अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, एयर अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, बट बाकी चीजों का तो वाटर, लैंड और ये तो हमारे यूज के नहीं है ना। अब लैंड इतना ही चाहिए ना कि घर बना लो, बाकी खाओगे कैसे, पियोगे कैसे, कपड़े कैसे पहनोगे? व्हेन यू प्रोड्यूस देम, प्रोड्यूस कहां से करोगे? नेचुरल रिसोर्सेज से ही वो भी प्रोड्यूस होगी। नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स यूज करोगे, उससे प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इनका पूरा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इसकी साइंस बोलते हैं। साइंस मीन्स नॉट मतलब प्रॉपर साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। साइंस में होता क्या है? 2+2=4, यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। H+O इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू H2O। कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला मैं सिंपली लिखता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू H2O, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग आप खुद कर लेना, केमिस्ट्री वाले लोग जिसको करना है। लेकिन यूनिवर्सली ये अमेरिका में भी ऐसा ही और इंडिया में भी ऐसा ही, ठीक है। लेकिन अमेरिका में इस समय महंगाई कम है, इंडिया में महंगाई ज्यादा है, तो फिर साइंस होती तो सेम महंगाई होती ना दोनों जगह। तो ये प्रॉपर साइंस नहीं है, ये बिहेवियरल साइंस है। क्या है ये? दिस इज बिहेवियरल साइंस। ये सिर्फ एग्जांपल है, इसमें केमिकल बैलेंसिंग, केमिस्ट्री का प्रॉपर बैलेंसिंग मैंने नहीं करा हुआ, ये भी एग्जांपल है, मैथ है तो जस्ट एग्जांपल है कि ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी का थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का आज भी, यहां भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, सब जगह क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इकोनॉमिक्स में आज इंडिया के अंदर महंगाई थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। सॉरी, आज थोड़ा कम है, पहले ज्यादा थी, अमेरिका में आज ज्यादा है। दे आर गोइंग टूवर्ड्स रिसेशन, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज रिसेशन की तरफ जा रही है। लेकिन वो मत सोचो अब क्या होता है, रिसेशन क्यों जा रही है, ये मत सोचो अभी। अभी हम बेसिक्स में हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस। क्यों वेरी करती? बिकॉज इट इज नॉट ए साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। इट इज अ social science. Now, why it is a social science? Because it is influenced by human behavior. Human कौन है? इकोनॉमिक्स में देखो, सोशियोलॉजी में आपको ह्यूमन बोलते हैं, साइंस में आपको ह्यूमन बोलते हैं, बायोलॉजी में आपको एक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको या तो प्रोड्यूसर बोलते हैं,
या कंज्यूमर बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं या ऑल ऑफ दीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद ही प्रोडक्शन करते हो, खुद ही सेल करते हो, तो आप प्रोड्यूसर भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। अगर आप खुद ही प्रोडक्शन करते हो, कुछ पार्ट सेल करते हो, कुछ पार्ट खुद ही कंज्यूम भी कर लेते हो, तो आप प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर तीनों हो गए। समझ रहे मेरी बात को? सो बेसिकली it is a social science because it is influenced by human behavior। मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहा हूं आपको। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर। अब किसको इतना समझ में नहीं आया? कोई है जिसको इतनी चीज समझ में नहीं आई है? इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, वसीम आपका भी अच्छा है, आंसर आपका सही है। वेल्थ ऑफ डेवलपमेंट्स, हाँ, इज द वेल्थ ऑफ डेवलपमेंट्स और डेवलपमेंट ऑफ वेल्थ। थोड़ा सा रिविजिट करो अपनी डेफिनेशन को, ठीक है? आरिफ इरफान, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड आरिफ। ऑनलाइन मोड पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, बट सबीना, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, लेकिन इसमें एक्सप्लेन करना है फिर ये गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, दोनों के डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन होंगी, ठीक है? हाँ, वो तो वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और वेल्थ का कॉन्सेप्ट जो एडम स्मिथ ने बोला वो भी बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें फिर ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है? एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड ये जो डेफिनेशन उसने दिया है, ये कहां पर दिया है? उसने एक बुक लिखा है दैट इज कॉल्ड एज एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस of wealth of nation, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations, an inquiry into the causes, inquiry into the nature and causes of wealth of nations, wealth of nations. Clear? Okay, so you can also write this basic definition of economics. Economics is equal to, economics is the production, distribution, and consumption of goods and services. Production, distribution and consumption of goods and services, in an economy, during a period of time, during a period of time. Clear? हाँ. So जो नोट्स बना रहे हो उसमें टॉप पे लिख लेना, we are dealing with chapter 1, module 1, and the name of the module is economic growth and development. ठीक है जसनीत और आदिल, आप भी ऐसे ही शुरू करना है इसको। हाँ, मॉड्यूल 1, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? मॉड्यूल 1, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? सो दिस इज वेयर वी हैव टू, ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कौन सा इसका सब्जेक्ट का, कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते क्या है, ठीक है? रिवीजन रोज करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको समझने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। यू विल रीड, यू विल अंडरस्टैंड इट एवरी बिट ऑफ इट, यू विल अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, ठीक है? तो प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में इसको भी समझना पड़ेगा। और दूसरा, इकोनॉमी भी समझना पड़ेगा और पीरियड ऑफ टाइम भी समझना पड़ेगा। पीरियड ऑफ टाइम जो है यूजुअली आज की डेट में हम लेते 1 साल में कितना प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन होता है, दैट इज बेसिकली व्हाट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। लेकिन वो थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। और ये प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन इज बेसिकली प्रोड्यूसर डज, प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर स्लैश रिटेलर does. Consumption
कंज्यूमर चॉइस। कौन करता है कंजम्पशन? कंज्यूमर। अच्छा, प्रोड्यूसर को कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किस अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, ये कौन बताता है? ये बेसिकली कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बताती है, कंज्यूमर बताता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर, होलसेलर and consumer, they are very closely linked, because what producer will produce, consumer will consume, and the wholesaler and retailer will sell or distribute. Distribution का मतलब होता है सेल करना, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये सारा प्रोसेस बीच का जो, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी उत्पाद को, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर से लेकर, सॉरी, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सारे डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में आपको बहुत सारी एजेंसीज बीच में होती है, जिसे सप्लाई चेन बोलते हैं। वो मैं आगे समझाऊंगा सप्लाई चेन क्या होता है और कौन कौन उसमें एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया इकोनॉमिक्स में कौन से मेन एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कितना करेगा, कैसे करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कितना रिसोर्स है वहां पे, कितने लोग हैं वहां पे। कंज्यूमर ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि कंज्यूमर तो एक ऐसी चीज है, ह्यूमन इज अ ग्रीडी बीइंग, ठीक है। देयर इज नो एंड टू ह्यूमन वांट्स, देयर इज नो एंड टू ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट्स, ठीक है। बट what happens actually is that there are limited resources, wants are unlimited, resources are limited। wants क्या है? बहुत ज्यादा, और resources क्या है? बहुत लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स का मेन काम यही होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में सब लोगों की नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए। दैट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है? कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। सो यू कैन राइट ऑल्सो नाउ द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो हो गया डेफिनेशन, मीनिंग समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? व्हाट इज योर गुड नेम? प्रकृति। आपको प्रॉपर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बैठो बैठो बैठो। इतना समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? या लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक है। सो दिस इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तजमल आपको समझ में आ गया सब कुछ? दीक्षित, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आप दोनों को तो होनी नहीं चाहिए अभी फिलहाल, बिकॉज अभी हम बहुत बेसिक्स में हैं। So this is economics, basic concepts and definition. Okay, now we will see what is the core concern of economics. Core concern of economics. क्या है core concern economics का? Basically, core concern of economics is the allocation of resources or the use of resources. Okay, despite the resources being limited, human wants being unlimited. Economics decide how much resources are to be used in which way. Resources का क्या मतलब होता है? Resources क्या होते हैं? जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इवन मनी को भी कभी कभी रिसोर्स ही बोलते हैं हम, क्योंकि मनी से हम बहुत सारी और चीजें जनरेट करते हैं ना। तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती है, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्लानिंग वे में हो, प्लान्ड वे में होना चाहिए। दैट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। सो यू कैन राइट कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, एलोकेशन ऑफ scarce resources, allocation of scarce resources। क्या होता है allocation of scarce resources? उन resources का allocation जो किस में है? scarcity। ये scarce word important है। scarce का मतलब होता है scarcity, जब किसी चीज की कमी हो, scarcity, बड़े कम अमाउंट में वो हमारे पास अवेलेबल हो, we have to basically use them, ठीक है। हाँ, तो सपोज आप लोगों के पास कोई ऐसा होता है जिसके पास 1 लाख रुपए होता है, ठीक है। वो तो कुछ भी ले सकता है, फोन भी ले सकता है, पेन, कॉपी, पेस्ट, घूमना फिरना, मूवी शूवी सब कर सकता है। 1000 रुपीज वाला है, उसे खाना पीना, मोबाइल रिचार्ज और बुक्स और नोटबुक्स ही ले सकता है, वो घूमना फिरना नहीं कर सकता। एक ऐसा है जिसके पास सिर्फ 500 रुपीज है, ठीक है, वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट खाना और पेन कॉपी, मोबाइल भी नहीं, रिचार्ज भी नहीं, ठीक है। अब ये कैसे हो पा रहा है? उनके पास जितना रिसोर्स अवेलेबल है वो उसी हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं उन्हें क्या करना है। हाउ व्हाट दे हैव टू डू, दे डिसाइड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या मैं इकोनॉमिक्स को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकता हूं फिर, कि इट इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी,
क्या मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग मींस आपको चूज करना है, आपको कितना रिसोर्स कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ ना, इस सब ये इलस्ट्रेशन से मैं ये बोल सकता हूँ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। यस और नो? आराम से राइट डाउन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग in presence of scarcity, in presence of scarcity। कमी की प्रेजेंस में, जब कोई चीज कम है, स्कैर्स है अवेलेबिलिटी में, तो तब आप क्या करते हो, उस टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग करते हो कि कहां पे कौन सा रिसोर्स कितना यूज करना है, दैट इज बेसिकली द इकोनॉमिक्स, दैट इज बेसिकली द इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये स्कार्स रिसोर्सेज का एलोकेशन, इससे क्या होगा? इससे रिसोर्सेज का क्या होगा? ऑप्टिमल यूज होगा, ऑप्टिमल यूज। ओके, इट एंश्योर्स ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स, इट एंश्योर्स ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट एंश्योर्स ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये ऑप्टिमल यूज क्या होता है? ऑप्टिमल यूज होता है कि मैं आपकी 100% नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतनी सेटिस्फाई कर दूंगा कि आप ओके ओके हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक की 100% नीड सेटिस्फाई करूंगा, दूसरे की मैं 30% भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेटर ये है कि सबकी 60-70% नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है इट इज अ स्टेज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेयर ह्यूमन गेट्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम से तो ओवर सेटिस्फेक्शन आता है, मिनिमम से अंडर सेटिस्फेक्शन आता है, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का स्टेज जहां पे ह्यूमन को एक ऑप्टिमल सेटिस्फेक्शन आता है, एक लेवल का सेटिस्फेक्शन आता है। ठीक है, सो इट इंश्योर्स ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस विच विच which enhances which enhances the which enhances the uh, human material well-being, human material well-being, कि ह्यूमन की जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है वो कम से कम फुलफिल हो सके। ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होती है? जितने भी आपको फिजिकल नीड्स होती है ना, पानी, खाना, कपड़े, रहना, रेजिडेंस, बाकी गुड्स एंड सर्विसेज जो रिक्वायर्ड है, इट इज कॉल्ड मटेरियल वेलबींग। पर आपको बहुत सारा सब कुछ मिल जाए और आप दिमागी तौर पे खुश नहीं हो, दैट इज नॉट ऑफ नो यूज। ओके, दिमागी तौर पे खुश होने को बोलते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग। मटेरियल वेलबींग प्लस साइकोलॉजिकल वेलबींग इज इक्वल टू ओवरऑल वेलबींग ऑफ ह्यूमंस। तो इकोनॉमिक्स और रिसोर्सेज, इनसे सिर्फ मटेरियल वेलबींग इंश्योर होता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग इनसे इंश्योर नहीं होता। हाँ, आपकी जरूरत ही उतनी ही है तो आप साइकोलॉजिकली भी सेटिस्फाइड रहोगे, तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज आगे यूज होनी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मटेरियल वेलबींग और साइकोलॉजिकल वेलबींग। मटेरियल वेलबींग समझ में आ गया आपको? आपको समझ में आ गया? मटेरियल मतलब जो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स होती है, मनी, गुड्स, सर्विसेज एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, दैट इज बेसिकली पॉसिबल व्हेन यू विल यूज योर रिसोर्सेज optimally, and optimal resource is the use of resource is the core concern of the economics, is the core concern of economics. Clear? Is the core concern of economics, science of decision making in the presence of scarcity. This is the definition which is written in your 11th class NCERT Indian Economic Development, and UPSC asked a question on this only. ठीक है, एक बार मतलब which of the following statements properly defines economics? नीचे 4-5 जो है, प्रोडक्शन distribution of goods, incomplete definition. Where is consumption? Production, distribution, consumption of goods, complete or incomplete? Incomplete, because where is services? Production, distribution and consumption of goods and services, complete definition or incomplete definition? Still incomplete. Where? Production, distribution, consumption of goods and services in an economy during a period of time. Now it is complete, but ये दिया ही नहीं था, दिया था science of decision making in presence of scarcity. ठीक है, अब बच्चों ने सोचा साइंस है, डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आंसर यही था। समझ रहे हो मेरी बात को? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच थिंग्स। समझ में आ रहा है आपको प्रॉपरली? जहां पे कमी रहेगी इतनी सी भी ना, 1% की भी, अगर आप इस क्लास में से भी बाहर वापस चले गए बिना कुछ लर्न किए हुए, वो मेरा फॉल्ट है।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं शायद इतना सिंप्लीफाई नहीं कर पाए चीजों को कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, ऑल फॉर ऑल आई एम टेलिंग यू, है ना, मैंने समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली द बेसिक्स अबाउट इकोनॉमिक्स, कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स की ना कई सारी ब्रांचेस होती हैं, वी हैव स्टडीड so many branches. Welfare economics is one branch, then statistical economics is another branch, theoretical economics is another branch, developmental economics is another branch. But वो economics optional वाले बच्चों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम इकोनॉमिक्स की दो ब्रॉडर ब्रांचेस को स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी टू ब्रॉडर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो इकोनॉमिक्स basically is divided into two branches. Economics as a subject is divided into two branches and it is studied under two branches. One is called microeconomics and another one is called macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics. Macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics. But Sabina, anything which has utility is known as resource. Very good. Daily basic needs are called resources. वसीम राजा, but Sabina का ज्यादा प्रॉपर आंसर है रिसोर्स के बारे में। एनीथिंग विच हैज सम यूटिलिटी इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ठीक है, हाँ। जो आपने लिखा है डेली बेसिक नीड्स, डेली बेसिक नीड्स तो रिसोर्सेज नहीं होती। नीड तो एक साइकोलॉजिकल चीज है कि मुझे ये चीज चाहिए। अब वो चीज जब मुझे मिल जाए वो एक गुड है। पहले नीड है जो साइकोलॉजिकल थिंग है कि मुझे कोई चीज चाहिए, फिर अगर वो मुझे मारकर चाहिए, ये मेरी नीड है, मेरा दिमाग कहता है मैं मुझे मारकर चाहिए। जब मुझे मारकर मिल जाए तो ये मारकर क्या है? गुड है, रिसोर्स थोड़ी है। रिसोर्स है इसके बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो चीज है। ठीक है, अब गुड जो है वो भी एक टाइप ऑफ रिसोर्स है, क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जिससे मैं नॉलेज डिलीवर करता हूं। तो ये गुड भी है पर ये रिसोर्स भी है। ठीक है, हाँ। तो वसीम आपका इस तरीके से डेली बेसिक नीड्स, कुछ बेसिक नीड्स से आगे भी बढ़कर होता है। ठीक है, वो भी रिसोर्स में ही आता है। ठीक है, वाटर इज अ रिसोर्स, एयर इज अ रिसोर्स। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट बेसिक नीड्स, लाइक something, some luxuries which are not basic needs, वो luxury needs है। car, but car is a resource which saves your time, which saves your time of travel। समझ रहे हो? तो बेसिक नीड्स आप इसको नहीं बोल सकते वसीम। सबीना का ज्यादा अप्रोप्रिएट चीज है कि एनीथिंग विच हैज सम यूटिलिटी, जो किसी चीज में यूज हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, हाँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का समझ में आ गया आपको? अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो ब्रांचेस है। ठीक है, माइक्रो का मतलब, वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब ही होता है स्मॉल। ठीक है, तो इसमें हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्मॉलर लेवल पढ़ते हैं। क्या स्मॉलर लेवल? कैसे? मैं बताता हूं आपको। अगर मैं बोल रहा हूं यार मार्कर महंगे हो गए मार्केट में, मैं कितने प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं? एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। और किस पैरामीटर की बात कर रहा हूं? इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं। बट इन्फ्लेशन इन द होल इकोनॉमी और इन्फ्लेशन इन वन प्रोडक्ट? जब मैं वन प्रोडक्ट लेवल पे बात कर रहा हूँ, वन इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ, वन कमोडिटी लेवल पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब मैं बोलूंगा यार हमारे देश में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत हो गई, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन इन द नेशनल लेवल, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर लेवल। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, व्हेन आई एम सेइंग कि यार आदिल की इनकम जो है 50,000 रुपए, ठीक है, आदिल की इनकम जो है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम ऑफ वन इंडिविजुअल, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज हमारी नेशनल इनकम जो है वो इतने लाख करोड़ है, ठीक है, तो मैं पूरे एवरेज नेशन की बता रहा हूं। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम जो है उसमें कितनी है? 1 लाख रुपए पर कैपिटा मींस ऑन एन एवरेज हर इंसान हमारे देश में इतना पैसा कमा रहा है। ठीक है, एवरेज बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछूंगा, आप बोलना वो माइक्रो है या मैक्रो है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इज बेसिकली अ डिक्लाइन इन अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इज इट मैक्रो और माइक्रो? माइक्रो और मैक्रो, हाउ मेनी से माइक्रो? रेज योर हैंड जो कहते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, हाउ मेनी से इट इज माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? ओके, दीक्षित नहीं बोल रहे और प्रकृति भी नहीं बोल रहे, बाकी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग ये बोल रहे हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है? हाँ, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आप भी बोल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ना? हाँ ठीक है, आप भी और आप भी। ठीक है,
अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं करी है, मैंने इंडस्ट्रीज के एक ग्रुप की बात करी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ग्रुप है, पर है तो एक ही ग्रुप, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर तो नहीं है हमारी इकोनॉमी का। तो एक ग्रुप की जब बात हो रही है, चाहे एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, चाहे एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की बात हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। जब तक मैं पैन नेशनल लेवल पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूंगा, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा, पूरे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा, तब मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अदरवाइज वो एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, वो तो एक है ना। तो सबको मिला के बनता है इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, वन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो आइडेंटिफाई करने को अगर आ जाए विच आर द फॉलोइंग इज अ माइक्रो और मैक्रो, ये नहीं देखना कि ज्यादा लोग, दिस क्लासरूम has wonderful students, intelligent students. Microeconomic concept, macroeconomic concept. Micro, this classroom, overall the level of education in Indian economy is low. Literacy rate is low. Literacy rate of this state, no. When I'm talking pan India level, तो ये मैक्रो कॉन्सेप्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सो इसी तरह इकोनॉमिक्स में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डील विद बेसिकली इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज और इंडिविजुअल यूनिट्स, whereas macroeconomics deal with the economic behavior of the pan India level economic entities। ठीक है, मैंने बैच सबसे टफेस्ट कंपोनेंट्स का शुरू किया इकोनॉमी के साथ, जो नए बच्चे, ठीक है, इसलिए कि अगर आपको इकोनॉमी समझ में आई और तो कोई चीज आपको दिक्कत नहीं दे सकती, ये 100% श्योर है। ठीक, हाँ चलो लिखो माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट इज द ब्रांच, it is the branch of economics that deals with the economic behavior it is the branch of economics that deals with economic behavior of individual units, economic behavior of individual units. So in macroeconomics what you study is basically individual economic units, individual economic units। एग्जांपल क्या है इसकी? प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, वन फर्म। फर्म क्या होता है? अ कंपनी, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। और नंबर टू यू कैन राइट इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके। और प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ये सिंगल यूनिट्स है जिनकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, ये सिंगल यूनिट्स है जिनकी आप बात कर रहे हो। सो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो अंडर दिस वन सिंगल एंटिटी इज स्टडीड। यहां पे सेम लिखोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्टडी of economic system, that deals with economic system as a that deals with the study of economic system as a whole. Yeah, Irfan, you are right. Macro deals at larger level. Larger level means it takes into account individual values or aggregates and averages. ये तो profit of a firm on an average, the profit earned by all the firms in the country. So it takes into account, you can write, it takes into account aggregates and averages, aggregates and averages। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ अ फर्म या प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म, वन फर्म, एक फर्म कितना प्रोड्यूस करती है। जब आप पूरे नेशनल लेवल पे देखोगे टोटल प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो एग्जांपल यहाँ पे क्या दे सकते हो आप? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जीडीपी, और यहाँ पे इनकम ऑफ वन इंडिविजुअल, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या दे सकते हैं? नेशनल इनकम। यहाँ पे क्या दे सकते हैं? नेशनल इनकम। और प्रॉफिट ऑफ अ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या दे सकते हैं?
overall price level in the economy. Overall price level in the economy. It takes into account, ये मतलब it takes into consideration. It takes into account means ये किस चीज को मानती है, किस चीज को देखती है. Aggregates and averages. It takes into account the aggregates. यहां तक ये statement आधा है. जैसे when you come to the class, you take into account how it is conducted, how the class is being taught. आप क्या चीज ध्यान में रखते हो? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज को ध्यान में रखती है? एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस. किस चीज के? इकोनॉमिक वेरिएबल्स जितने भी हैं. अब इंडिविजुअल्स की सभी की इनकम है, उसका एग्रीगेट क्या है? नेशनल इनकम. ठीक है. उसका एवरेज नेशनल इनकम. ठीक है. और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फर्म्स, 1 फर्म, 2 फर्म, 3 फर्म, ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, उनका प्रोडक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हालांकि ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करूंगा. ये सिर्फ अभी एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. ठीक है दीक्षित, कोई परेशानी आ रही है आपको? तजम्मुल कोई इसमें है जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप बेझिझक पूछना, कोई मतलब ऐसा नहीं है. ठीक है. आप आर्ची समझ में आ रहा है? किसी को भी, आपको तो खैर पता ही है कि मैं कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट एड्रेस कर देता हूँ, तो डरना नहीं है. आप तो वैसे भी नहीं डरते, आप तो क्लास नहीं अटेंड करते. ठीक है. ऑर्डर्स बता दे रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं मान रहे आप लोग, है ना? हाँ ठीक है. तो ये है बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. अब अभी तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं ना, अब मैं इकोनॉमी की बात करूंगा. जैसे मैंने आपको ये नहीं कहा कि वी विल स्टडी इंडियन इकोनॉमिक्स, मैंने क्या लिखा है? वी विल स्टडी इंडियन इकोनॉमी. ओके. तो इकोनॉमी क्या है? व्हाट इज इकोनॉमी? और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है एक पर्टिकुलर रीजन की. ठीक है. जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं ना, इंडिया में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, तो मैं इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा, फिर मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहा है. सो इकोनॉमी को क्या सिंपलेस्ट वर्ड्स में क्या लिखोगे? इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक्स ऑफ अ रीजन. इकोनॉमिक्स ऑफ अ रीजन. इकोनॉमिक्स ऑफ अ रीजन का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन. किसी एक रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसी एक रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इकोनॉमिक्स ऑफ अ रीजन बोलते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी? ओके. So this is how you have to basically understand the economics. You have to understand the economics. ये basic introduction था इंडियन इकोनॉमी के बारे में. ठीक है. अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स के बारे में we will see how economic growth, economic development and all human development, human resource development, how these concepts are interacting with each other and how they are interrelated. Okay. जो नए बच्चे हैं उनको पहले पहले हो सकता है लगे कि बड़ा टफ है, हालांकि आई टेक थिंग्स सो मच इजियर. ओके. लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ है तो बार बार रिवाइज करो, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो बार बार. ठीक है. क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स तैयार हो गई तो समझना सिविल सर्विसेज का 80% डर आपके अंदर से निकल जाना चाहिए. ठीक है. क्योंकि बाकी हर चीज इससे ज्यादा इजी है, बाकी हर एक सब्जेक्ट इससे इजी है. ये टफेस्ट कंपोनेंट है. ठीक है. बाकी हर चीज इससे इजी है. ठीक है. हाँ. सो उसके बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? हाँ गुड. इन एन इकोनॉमी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप चले गए ना तो मेरे को समझ में आ गया. हाँ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. नाउ ग्रोथ क्या होता है? किसी भी चीज का इंक्रीज होना. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलोगे? प्रोडक्शन का इंक्रीज होना. प्रोडक्शन ही तो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? जब प्रोडक्शन, क्या मैं ये बोल सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का इंक्रीज होना इकोनॉमिक ग्रोथ है?
नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तब इंक्रीज होगा जब प्रोडक्शन होगा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ कंजम्पशन का इंक्रीज होना इकोनॉमिक ग्रोथ है? कंजम्पशन का इंक्रीज होना तो डिमांड है, डिमांड का इंक्रीज होना, लेकिन प्रोडक्शन उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रोडक्शन का इंक्रीज होना इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो यू कैन राइट इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेसिकली, economic growth is it refers to a process of increase in production. It refers to a process of increase in production. It refers to a process of increase in production of goods and services, of goods and services in an economy, in an economy, in an economy over a period of time, over a period of time. So increase in production of goods and services in an economy over a period of time. क्या होता है ये over a period of time? ओवर अ पीरियड, देखो पीरियड ऑफ टाइम की जब आप बात करते हो ना, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मींस मिलियन ऑफ ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। लेकिन जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम मींस एट द मैक्स 1 ईयर, एट द मैक्स 1 ईयर, एट द मैक्स क्या 1 ईयर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बात कर रहे हो, इट इज बेसिकली मोस्टली 1 ईयर in economy. This 1 year is also called financial. This 1 year is also called financial year और fiscal year. इस साल को क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल और फिस्कल दोनों सेम टर्म्स है। फिस्कल जो है ये टर्म डील करती है किसके साथ? फिस्क। फिस्क का मतलब होता है बजट, ठीक है। हाँ, so first 1 year is equal to financial year is equal to fiscal year, इसको same thing, financial year is also called as the fiscal year, and in India this 1 year starts from 1st of April, 1st of April to 31st of March। अच्छा, 1st अप्रैल से शुरू होगा, तो याद रखना 1st अप्रैल से जब शुरू होगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आएंगे एक साल के। जनवरी, फरवरी, मार्च ये आएंगे नेक्स्ट साल के, ठीक है। अब ये 1st अप्रैल टू 31st मार्च इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली अप्रैल, मई एंड जून। सेकंड क्वार्टर इज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। थर्ड क्वार्टर इज अक्टूबर, November and December. Fourth quarter is January, February and March. Jan, Feb and March. तो याद रखना हर फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में होता है। हर फाइनेंशियल ईयर का, जैसे अभी 2023 और 2024 का ईयर भी साथ में जाएगा। इसलिए इंडिया में कभी ये नहीं लिखते कि दिस इज द बजट ऑफ 2023। It is oftenly written that this is the budget of 2023-24. Why 2 years are written? Because हमारा एक क्वार्टर जो है वो नेक्स्ट Q4 जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में चला जाता है, ठीक है। So that's why this year we have our finance minister has presented the budget of 2023 and 2024, 2023 and 2024, ठीक है। बजट के ऊपर मैं क्लासेस कहाँ पे ले रहा हूँ? जीएस मेंटर्स का यूट्यूब का चैनल है, सभी लोग आज जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना। मेजोरिटी ने तो किया ही है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्यों? वहां पे इकोनॉमिक सर्वे की क्लास चल रही है, 2 दिन इकोनॉमिक सर्वे और चलेगा, उसके बाद बजट की क्लास होगी वहां पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप लोगों के लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो फ्रेशर्स है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों के पास अब टाइम नहीं है कि ये मेरे एनसीईआरटी की क्लासेस, हाइलाइट्स तो देख ही लेना आप भी, लेकिन पूरा डिटेल अब ये नहीं कर सकते क्योंकि ये कर चुके हैं वो चीजें, ठीक है। जो फ्रेशर्स हो आप लोग, वहां पे एनसीईआरटी की क्लासेस कुछ देर में स्टार्ट होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ज्योग्राफी की होंगी, हिस्ट्री की होंगी, पॉलिटी की होंगी, इकोनॉमी की होंगी, ठीक है। दो तो मैं खुद ही लूंगा, एक तो इकोनॉमी की मैं खुद लूंगा, एक पॉलिटी की मैं खुद लूंगा, ठीक है। बाकी चीजों के आप दूसरे टीचर्स भी लेंगे, तो वहां पे वो चैनल सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना। ऑनलाइन मोड में भी जितने लोग हो, जो वो यूट्यूब चैनल जो है ना जीएस मेंटर्स का, उसको सब्सक्राइब कर लेना सारे, ठीक है। दैट विल बी ग्रेटली हेल्पफुल, क्योंकि उस पर लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप नाउ। करंट अफेयर्स में पूरा वहीं पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ,
सो ये समझ में आ गया आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ओके, अब ये प्रोडक्शन में इंक्रीज जो होता है ये बेसिकली एक दिन इंक्रीज हो गया अचानक से, बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद अगले 3 महीने तक कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, आप उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोल सकते हो क्या? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट इज अ persistent increase। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस persistent increase। persistent मींस कंटिन्यूअसली धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। persistent increase in what? persistent increase in real GDP। दूसरा डेफिनेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, persistent increase in real GDP। persistent increase in real GDP। अब बड़ी ही एक टिपिकल चीज मैं बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। बड़े मतलब इंट्रोडक्शन है सिर्फ, तो मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाऊंगा क्योंकि डिटेल में मुझे जीडीपी का चैप्टर डील करना है ना। हाँ, मैंने क्या लिखा? परसिस्टेंट इंक्रीज इन रियल जीडीपी। तो आपको जीडीपी का समझ में आना चाहिए ना, मतलब फिर जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या हो गया। फिर जब मैंने रियल वर्ड लिखा, रियल क्यों लिखा इसके ऊपर, ठीक है। अब गौर से सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ के, ठीक है। व्हेन आई से जीडीपी, ये कहीं बॉक्स में साइड पे लिख लो। हाँ, जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? डोमेस्टिक मतलब ये डोमेस्टिक टेरिटरी जो है इंडिया की, उसके अंदर घरेलू जिसको बोलते हो आप, ठीक है। ये विद इन द इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी जो प्रोडक्शन है उसको क्या बोलोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर कितना वे, मतलब ठीक है, ये 10 तो डाइस प्रोड्यूस हुए इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इसको केजी में कर सकते हो कन्वर्ट? नहीं, इसको तो यूनिट्स में ही रखना पड़ेगा ना। 100 kg ऑफ व्हीट, तो उसको बोल सकते हैं 100 यूनिट्स ऑफ व्हीट, नहीं वो तो केजी में ही रहेगा। 100 लीटर्स ऑफ केरोसिन, अब उसको तो केजी में नहीं बोल सकते, ठीक है। 1 डजन बनानास, अब उनको आप लीटर्स में नहीं बोल सकते, किलोमीटर्स में भी नहीं बोल सकते। एंड 100 किलोमीटर ऑफ रोड एंड रेलवे ट्रैक, आप उसको केजी में नहीं बोल सकते। तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है, आप कितने यूनिट्स में उसको याद रखोगे? नहीं याद रख सकते, इसलिए उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, 1,000 रुपए के डाइस प्रोड्यूस हुए इंडिया के अंदर, 5,000 रुपए का पेट्रोल और केरोसिन प्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, और 100 करोड़ के रोड्स और रेलवे ट्रैक्स प्रोड्यूस हुए, तो मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो सबको, फिर तो समझ पाओगे, ठीक है। अब सपोज करो आपने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। कितना प्रोडक्शन किया? 100 यूनिट्स का। क्यूटीआई मींस क्वांटिटी, मींस क्वांटिटी। हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव प्रोड्यूस्ड? 100 यूनिट्स इन एन इकोनॉमी। एंड लेट अस से ऑन एन एवरेज द प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज हाउ मच? Price of each unit is how much? Let us say 10 rupees. Let us say how much? 10 rupees. So what shall be GDP? What shall be GDP? कितना होना चाहिए GDP? बताओ तो जमा। पूरी इकोनॉमी में आपने एक साल में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया और हर यूनिट जो है वो 10 रुपए का था, ठीक है। प्रकृति कितना होना चाहिए एवरेज जीडीपी? वेरी गुड। जीडीपी का मतलब द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट, बिकॉज मनी वैल्यू ही तो निकालना है। तो साइज ऑफ जीडीपी कितना आ गया? ₹1000 आ गया, ₹1000 आ गया, ठीक है। दिस इज अ मैटर ऑफ 2012, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल, ठीक है। से अनदर एग्जाम्पल ऑफ 2013 आई एम टेकिंग, स्टिल वी हैव प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स। यही 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रहे उस साल भी, ठीक है। लेकिन प्राइसेस उस साल में क्या हो गया? इंक्रीज। कमोडिटी के प्राइसेस हो गए इंक्रीज, रुपीज कितना? 11। व्हाट इज द जीडीपी नाउ? हाँ, 1100। ओके, क्या है जीडीपी? 1100। तजम्मुल समझ में आ रहा है? 1100 जीडीपी पहुंच गया। यहां से यहां तक जीडीपी में कितना ग्रोथ है? 100 यूनिट्स। कितना? 100 यूनिट, सॉरी 100 रुपीज का, ये रुपीज में कन्वर्टेड है ना जीडीपी। सो 100 रुपीज का विजिबल है ग्रोथ आपको जीडीपी का। अब 100 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 1000? 100/1000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 10, ठीक है। तो 10% ग्रोथ यहां से यहां तक विजिबल है। कितना परसेंटेज?
इट इज शोइंग दैट इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 10%, ठीक है। बट प्रोडक्शन कितना था पहले, 100 यूनिट्स का था, अब कितना है, 100 यूनिट्स का है। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, आप कैसे बोल सकते हो ग्रोथ हुआ इकोनॉमी? ग्रोथ तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन ही है ना। तो ये ग्रोथ क्यों विजिबल है फिर वहां पे? बिकॉज प्राइसेस बढ़े हैं कमोडिटीज के। तो प्राइसेस की बढ़ने की वजह से जो फेक ग्रोथ विजिबल होती है इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं उसे? नॉमिनल जीडीपी। दिस इज नॉट द रियल जीडीपी, दिस इज द नॉमिनल जीडीपी। क्या है ये? नॉमिनल जीडीपी। इसके बदले में अगर मैं यहां पे बोलता आपको कि यूनिट्स हो गए 110, ठीक है, और प्राइस है अभी भी 10, ठीक है, तो कितना होता? अब कितना आपको दिखता? अब भी 1100 दिखता ना। पर यहां पे, यहां से यहां तक अगर बात करें तो ग्रोथ कितना विजिबल है अभी? 10%। तो एक्चुअली 100 से 110 तक 10 यूनिट्स का ग्रोथ हुआ है, तो ये 10% सच में ग्रो हुआ है, प्राइसेस की वजह से विजिबल नहीं है ये। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये प्राइसेस की वजह से जो ग्रोथ विजिबल नहीं होता, जो एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। सो इंक्रीज इन, कहां पे लिखा था मैंने वो, परसिस्टेंट इंक्रीज इन रियल जीडीपी। तो क्या मैं रियल जीडीपी को ऐसा बोल सकता हूं, इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी? वो जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट की हो, इन्फ्लेशन माइनस की गई हो, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। कैन आई से दिस और नॉट? जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने क्या करा है, डिस्काउंट करा है। एक्चुअल कितना ग्रोथ है, ठीक है। एक चौथा केस भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ केस में हम देखते हैं कि 100 से यूनिट से हम कितना ग्रो हुए, 110%। कितना? 110 तक हमारा प्रोडक्ट बढ़ा। ये 2014 की बात है, यहाँ पे 2015 की बात अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 2015 में 100, अब तो 110 है ना यहाँ पे। 110 से लेकर हम कितना ग्रोथ करते हैं, सपोज हम पहुंचते हैं 121 तक, 121 प्रोडक्ट्स तक, 121 प्रोडक्ट। और प्राइस पहुंचता है जो वो 10 से पहुंचता है अगेन 11 तक। कितना पहुंचता है? 11 तक, ठीक है। कितना हो गया? 1331। कितना हो गया? 1331, ठीक है। प्रोडक्शन यहां पे हुआ और प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ गया, और ग्रोथ कितना नजर आ रहा है? 1331। अब 1100 से 1331 की तरफ आप गए हो, तो ये ग्रोथ शो कर रहा है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली आप हिसाब लगाना, अराउंड 30% ग्रोथ शो कर रहा है, 25% प्लस ग्रोथ शो कर रहा है अगर मैथ करोगे आप, ठीक है। पर एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है? 110 से लेके 121 तक 11 यूनिट्स का ग्रोथ हुआ। 11 यूनिट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 10%। तो ग्रोथ एक्चुअली 10% का हुआ, शो ये कर रहा है 25%। वो इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रोथ भी हुआ है और इसमें थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल फिगर आता है ग्रोथ का, ठीक है। यू गेट द पॉइंट? इतना समझ में आ गया आपको? तो ये रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में, आपको तजम्मुल समझ में आया? रियल और नॉमिनल में क्या फर्क है? नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड होती है और ग्रोथ भी होता है, ठीक है। लेकिन रियल जीडीपी में एक्सक्लूसिवली हम ग्रोथ देखते हैं, उसमें इन्फ्लेशन हम चेक नहीं करते। इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। गेट द पॉइंट? सो persistent increase in real GDP is called as the economic growth, is called as the economic growth. Clear? Any doubt, anybody? Okay. ये illustrations बनाने होते हैं कॉपी में, याद नहीं रहता ऐसी चीजें। कौन? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में व्हेन यू सी ग्रोथ as well as price increase, you will get the exaggerated figures. Why? Because price increase will show you the increased numbers, which I told you here 25% ये दिखा रहा है क्योंकि प्राइस भी बढ़ा है, ठीक है। जब प्राइस मैंने सेम रखा तो यहां से यहां तक सिर्फ 10% ग्रोथ विजिबल है और एक्चुअली 10% ही प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। जब जितना ग्रोथ विजिबल हुआ
उतना ही प्रोडक्शन भी हुआ है, तो इसका मतलब इट इज रियल जीडीपी। लेकिन जब प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन जीडीपी थोड़ा साइज ज्यादा दिखा रहा है, उसका मतलब वो इन्फ्लेशन की वजह से है। तो इन्फ्लेशन के साथ वाली जो जीडीपी है उसको आप नॉमिनल जीडीपी कहते हो। विदाउट इन्फ्लेशन प्योरली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, रियल जीडीपी होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने सिर्फ एक चीज की बात की है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या मैंने इंक्रीज इन वेलफेयर की बात की? क्या मैंने इंक्रीज इन साइकोलॉजिकल बीइंग की बात की, साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात की? मैंने किसी चीज की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ है भी नहीं ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का काम है प्रोडक्शन, बस। अब वो प्रोडक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, सिर्फ अंबानी ही प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ अडानी ही प्रोड्यूस कर रहा है, पर ओवरऑल इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन हम ये नहीं देख रहे इसमें क्या लोगों का वेलबींग बढ़ रहा है, क्या लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है। जब हम ये डायमेंशन कंसीडर करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डील इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, the next concept which we are going to deal is economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े और ओवरऑल वेलबींग भी बढ़े लोगों का। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज की बात हो रही है। प्रोडक्शन के साथ साथ जब लोगों का सेटिस्फेक्शन बढ़े, जब लोगों का वेलबींग बढ़े, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यू कैन राइट इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, it refers to a process of economic growth, it refers to a process of economic growth accompanied by accompanied by accompanied by improvement in well-being of people. It refers to process of economic growth accompanied by improvement in well-being of people. Improvement in well-being of people. It refers to process of economic growth accompanied by improvement in the well-being of people. Okay, अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये तो डेफिनेटली होगा ही, प्लस इंप्रूवमेंट इन वेलबींग। वेलबींग कैसे होगा लोगों का? जब इंक्रीज इन हेल्थ सिस्टम प्लस इंक्रीज इन एजुकेशन सिस्टम प्लस हेल्थ एजुकेशन प्लस बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस इंप्रूवमेंट इन quality of life plus when there will be reduction in poverty, when there will be reduction in inequalities in the society means जब लोग एक दूसरे को अनइक्वल ट्रीट करते हैं, जब ये भी कम होंगे, गरीबी कम होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन का इंप्रूवमेंट होगा, हेल्थ सिस्टम का इंप्रूवमेंट होगा, प्लस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ये ओवरऑल प्रोसेस है जो है, इसे क्या बोलेंगे आप? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो विच वन इज अवर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक ना कंपैरेटिव टेबल बना लो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ओके, और इसका क्या मतलब है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्लस इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल वेलबींग। इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्लस इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल। इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल, दिस इज economic growth. This is economic growth and economic development. Economic growth and economic development. Clear? Any doubt in this? Economic growth and economic development. Clear? So, which one is a broader concept?
हाँ, यू कैन राइट इकोनॉमिक एंड विच वन इज, इसमें इसको तो आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसमें एजुकेशन कैसा है, क्वालिटी से पता चलेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्वालिटी। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से क्वांटिटी वाइज ओके गुड, बट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है, और डॉक्टर है भी तो ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहा है, मेडिसिन अच्छी नहीं ले रहे, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट, इट इज सॉरी इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वांटिटी कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एंड इट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, it is a qualitative concept. It is a quantitative concept, another one, and another one is a qualitative concept. Clear? Then in this you will see only one dimension or many dimensions? Only one dimension you are seeing. Which one? Only the dimension of economic growth, production. Production is increasing means economic growth is there. But what about this? प्रोडक्शन इंक्रीज होना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वेलबींग भी बढ़ना चाहिए। सो विच वन ऑफ दिस इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट? दिस इज मल्टी डायमेंशनल एंड दिस इज यूनि डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सो दिस इज अ यूनि डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। दिस इज अ यूनि डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड द अदर वन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, unidimensional and multidimensional concept. Okay, this is about economic growth and economic development. Moreover, this should be an objective of the government, or this should be the objective of the government? This should be the objective. So can we say it is a goal or end? It is a goal or end? No, it is not a goal or end, one and the same thing. But can we say it is a means? Means means एक तरीका है कोई goal achieve करने का. So it is a means. It is a means to an end, but not an end. So it is an end in itself. It is an end in itself. End in itself. It is an end in itself. It is an end in itself. It is an end in itself. Clear that? उसके बाद can we achieve this without this? Can economic growth be achieved without economic development? ये statement based questions आते हैं पेपर में, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। Which of the following statement is true? Economic growth can be achieved without economic development. बच्चे सोचते कैसे पॉसिबल है क्रॉस, लेकिन इट इज एक्चुअली ट्रू। प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन करते रहो, ग्रोथ तो हो ही रहा है ना। सो इट कैन बी अचीव्ड, इट कैन बी अचीव्ड without economic development. Okay, and can economic development be achieved without economic growth? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करना है आपको? वेलबींग बढ़ाना है। प्रोडक्शन ही नहीं होगा, बेसिक नीड्स, भूखे मरेंगे लोग, तो वो कैसा वेलबींग है? राइट। सो बेसिकली दिस कैन नेवर बी और सेल्डम बी अचीव्ड विदाउट दिस। ओके, सो यू कैन राइट इट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कैन सेल्डम बी अचीव्ड। कैन seldom means never, can seldom be achieved without economic growth. Because economic growth पहले प्रोडक्शन तो हो, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल तो हो, बेसिक नीड्स तो हो, then you can go for further production. Clear? Any doubt in this? Okay. So technically, this is all you need to know about the economic growth and development. What are the indicators of economic growth? And what are the indicators of economic development? इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है? सिर्फ जीडीपी बढ़ता रहे तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बढ़ता रहे, ग्रोथ है। सो इसका इंडिकेटर्स, इट इज इंडिकेटेड बाय रियल जीडीपी, इट इज इंडिकेटेड बाय रियल पर कैपिटा इनकम, एटसेट्रा। Clear? And what about this indicators of this? It is indicated by Human Development Index, HDI, Human Development Index, and also World Happiness Report, World Happiness Report, Human Development Index, World Happiness Report, etc.
अब ये क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये एक सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। आई विल टेक दिस सेपरेटली समवेयर डाउन द लाइन, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर विच इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ पे 2022 के पेपर में मेंस में सवाल आया, आईएएस 2022 के मेंस में इसके ऊपर सवाल आया है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, हालांकि स्ट्रेट क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, उसमें यह था कि मीन्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ जो है अभी चेंज हुए हैं, तो वो मीन्स के ऊपर डिस्कशन करना, ठीक है। हाँ, नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? इसके लिए आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इंक्लूजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इंक्लूजन, ओके। जब मैं आपको बोल दूंगा ना, आप तजम्मुल, आप सब लोग, आप 3-4 लोग मेरे ऑफिस में आना, ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। I have taken you three exclusively, excluded you three from the main classroom, taken you outside and told you something which I have not told all. Okay. When I tell all of you, listen, this is what I'm going to do for you. I have included all of you in my classroom. This is called inclusive. Inclusive का मतलब ही होता है when you bring all the masses into the कवरेज, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव। अब मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करूं या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करूं, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब इंक्लूजन ऑफ ऑल द मासेस, इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ मासेस इन द फाइनेंशियल नेटवर्क, बैंकिंग एंड अदर फैसिलिटीज। व्हेन आई से सोशल इंक्लूजन, सोशली आई मस्ट नॉट कीप एनी कास्ट आउट, any class out, I must bring all the people within the coverage. This is called inclusion. Inclusive growth, a growth process in which all will participate and all will get equal benefit from it. This is how United Nations Development Program defined inclusive growth. UNDP, United Nations Development Program. United Nations Development Program. Okay. United Nations Development Program defines inclusive growth, defines inclusive growth as a process as well as an outcome, a process as well as an outcome, where all groups have participated, a process as well as an outcome, where all groups have participated in the organization of growth. All groups have participated in the organization of growth. All groups have participated in the organization of growth, and all have benefited equitably from it. All have benefited equitably from it. Equitably मैंने यहाँ पे लिखा है, what is equitably अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। Means all have participated in the growth and all have benefited equitably from the growth. Clear? Now inclusive growth के 2 dimensions है, ठीक है। All have participated, ये तो प्रोसेस है ना कि ग्रोथ के प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस। नाउ व्हेन ग्रोथ हैपेंस, व्हेन ग्रोथ टेक्स प्लेस, all must get benefit, all will get benefited, so it is an outcome. So that's what I told you in the first statement, it is a process as well as an outcome. Process of organizing the growth through participative means, so it is basically about participativeness, okay. Then all have benefited or received the benefit from it. This is called basically the outcome. So it is a process as well as the outcome. Clear? Now equitably
they have benefited from it. What is the word equitable means? When I say equal and equitable, when I say equal and equitable, I can differentiate it in two ways. Okay, this is a class. I distribute 100 rupees among you all. Okay, this is called equal treatment. This is called equal treatment. You get the point? But this is a class where I find Adil is a rich person. Okay, I'll give him only 10 rupees. I find he's less richer. I'll give him 20 rupees. Sorry, 20 rupees. I'll find people in the back are poorer. I'll give them 50 rupees. And people in the last row are the poorest. I'll give them 100 rupees. Net resultant is the richer will not get more richer because he has got only 10%. But the poorest who has got 100 rupees will come to the level of the richer one now. Clear? तो इट इज बेसिकली इस तरह से लोगों को ट्रीट करना कि जो गरीब है उसे थोड़ा ज्यादा हेल्प करना और जो अमीर है उससे ज्यादा हेल्प करने की जगह उससे वहां से पैसे ले लेना टैक्सेशन के फॉर्म में। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। इक्विटेबल ट्रीटमेंट मींस ट्रीटिंग पीपल एज पर देयर लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, ट्रीटिंग पीपल एज पर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, ट्रीटिंग पीपल एज पर द लेवल ऑफ वेलबींग। तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे? इंक्लूसिव ग्रोथ में मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा लेंगे, कुछ लोग बहुत कम फायदा उठाएंगे, नहीं, जिसको जितना फायदा जरूरत है उसको उतना फायदा मिलेगा इस ग्रोथ से। दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल। इक्विटेबली दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोसेस। अब इसके दो बेनिफिट्स है। एक, लोग खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर? ग्रोथ प्रोसेस के अंदर। अब जब वो लोग ग्रोथ प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेचुरली उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही गया है ना, क्योंकि वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो इनकम जनरेट कर रहे हैं, फिर जब उससे प्रोडक्शन होगा उससे जो भी बेनिफिट्स होंगे वो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर कंट्रीब्यूशन उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ विच वन शुड बी द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ, growth through participation of masses. Okay, this one shall be more better and objective. Okay, inclusive growth. Okay, so inclusive growth is basically participative in nature. You are right, it is participative in nature. It enhances welfare, it enhances employment, it enhances welfare, it enhances employment. नहीं, रेजर्वेशन थोड़ा अलग चीज है। रेजर्वेशन का मतलब ये है कि आप किसी को एक एज दे रहे हो। हाँ, इक्विटेबल ट्रीटमेंट में आएगी, वो किस में आएगी? इक्विटेबल ट्रीटमेंट में, बट इंक्लूसिव ग्रोथ में नहीं, क्योंकि वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बट वो प्रोडक्शन का प्रोसेस ही नहीं है ना, वो तो एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस है। वो प्रोडक्शन प्रोसेस तो है भी नहीं ना। हाँ, ओके। हाँ, सब्सिडीज के थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकता है। कैसे? सब्सिडीज के थ्रू जो पुअरर सेक्शन है वो प्रोडक्शन में फार्मर्स को सब्सिडीज दे दो, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स। क्या बोलते हैं उनको? रिडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स। सो इट इज पार्टिसिपेटिव इन नेचर्स। यू कैन राइट ऑल्सो इट इंक्लूड्स redistributive measures like subsidies. Okay, also other welfare payments. What are welfare payments? Those payments which are made by the government to the vulnerable sections, like pensions to the old age people. Okay, so welfare payments like old age / widow / disability pension, etc. These are called welfare payments. ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? Welfare payments. Okay. Now, how will you say that definitely there is an inclusive growth which is going on in an economy? How can you say that? How can you ensure that?
how can you ensure that there is an inclusive growth which is going on in an economy? How can you say that there is an inclusive growth which is going on in an economy? Yes. When inequalities are reduced. और कुछ? अच्छा, इनइक्वालिटीज ऐसा भी तो हो सकता है कि जो गरीब है उनको मैंने खूब सारा जो है पैसा ही दे दिया, सिर्फ इनइक्वालिटीज ही रिड्यूस करनी है तो, या मैंने इतना ज्ञान बांट दिया कि सारी क्लासेस जो है उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दिया। इनइक्वालिटीज तो तब भी रिड्यूस हो जाती है। इंक्लूसिव ग्रोथ आप सबसे पहले समझो। गुड गुड। तो पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर करते हो आप? हाउ डू यू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन द इकोनॉमी? ठीक है, हाउ डू यू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल? So you can write now features slash components of inclusive growth. 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 Okay. Features slash components of inclusive growth. ठीक है? So first feature is that you increase human capability so that they can participate in the growth process. Okay. When you have increased their capability, then you generate the opportunities for them. मैंने ट्रेन तो आपको कर दिया प्रोडक्शन के लिए, लेकिन मैं आपको मौका ही नहीं दे रहा प्रोडक्शन का। व्हाट इज द फन ऑफ दैट ट्रेनिंग? ओके, दैट ट्रेनिंग नो फन, नो यूज। ठीक है, तो पहले लोगों की एबिलिटीज को बढ़ाना है, फिर उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। तो इट हैज टू मेन कंपोनेंट्स, वन इज बेसिकली इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड द सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, वन कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग ह्यूमन capability and the second one is employment generation. Second one is employment generation. Increasing human capability and employment generation. Okay, how can you increase human capability? How can you increase or enhance human capability? Batao. By increasing their knowledge, by increasing the health, by increasing the skills, by increasing the areas in which they are, by increasing basically their basic amenities. You get the point? So why we need to increase human capability? Because this will increase the employability. This will increase the employability. मीन्स ये एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करेगा। एम्प्लॉयबिलिटी का क्या मतलब होता है? एक इंडिविजुअल के चांसेस की, वो कितना चांसेस है कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो एम्प्लॉयबिलिटी विल इंक्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट। इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नाउ हाउ यू विल इंक्रीज द ह्यूमन कैपेबिलिटीज? हाउ विल यू इंक्रीज द ह्यूमन कैपेबिलिटीज? ओके, सो by improving the education status slash level. Okay, by improving the health system, by improving the skills, by improving the skills, okay, by improving the basic amenities, by improving the basic amenities, okay, then by reducing discrimination,
discrimination, mainly gender discrimination, because due to reducing gender discrimination, you will increase the employability of women. You will increase the employability of women. Okay, then ensuring equal opportunity for all. Equal opportunity for all. Ensuring equal opportunity for all. Ensuring equal opportunity for all. Clear? Now, what about employment generation? What are the benefits? It will basically, how will you generate employment? You will increase investment. You will increase investment. Clear? Now, due to increasing in investment, you will increase investment का दूसरा नाम ही है capital formation. Capital formation. What is capital formation? Capital का मतलब क्या होता है? मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ. कैपिटल फॉर्मेशन इज इंक्रीज इन मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट एटसेट्रा. सॉल्व कैपेसिटी, कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा. ठीक है, अब कैपिटल फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा? मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट जब बढ़ेगा, उनको चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. क्लियर? नाउ you'll also see that you have to develop a sense of, a sense of business among the youth, among the masses. That is called development of entrepreneurship. Development of ENTRPREN. Development of entrepreneurship. Entrepreneurship. What is entrepreneurship? Entrepreneurship क्या होता है? एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, जब आप ये कैपेसिटी डेवलप करते हो कि वो एक एंटरप्राइज की तरह काम करे, वो एक अपना बिजनेस सेटअप करे और उसे उसमें प्रोडक्शन करे. ठीक है, दिस कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्लियर? अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स भी लॉन्च की, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम आप बहुत बार सुनते होंगे, जिसे हम बहुत डिटेल में भी बाद में डिस्कस करेंगे, मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया. अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देयर आर वेरियस स्कीम लाइक स्टैंड अप इंडिया, then startup India. So many other schemes are also there. Clear? और कैसे एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट हो सकता है? हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना इंडियन इकोनॉमी का, उसका एक सेक्शन है जिसे आप बोलते हो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME. ये वो सेक्टर है जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है. 30% से ज्यादा ग्रोथ हुआ उस सेक्टर में पिछले एक साल में. कैसे? क्योंकि ये वो सेक्टर है जो बहुत इजीली ग्रो कर रहा है, और बैंक्स ने भी इन्हें एक्सटेंसिवली लेंडिंग किया है. ठीक है, मैं ये बातें क्यों कर पा रहा हूं? 30% ग्रोथ हुआ, या इतना में लेंडिंग इंक्रीज हुआ, डबल हो गया उनको लेंडिंग पिछले कुछ साल. क्योंकि मैं अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा भी हूं और आप लोगों को पढ़ाया भी. ठीक है, तो ये ही पॉइंट्स आप पेपर में तब लिख पाएंगे जब आप मेरी ये वाली क्लासेस अटेंड करेंगे. ठीक है, ओके. सो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया. ठीक है, अब उसके बाद हमको सपोर्ट किसको करना है? वही सेक्टर जो क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव है. सपोर्ट टू MSME सेक्टर एंड लेबर इंटेंसिव एंड अदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. अदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. अच्छा, अदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कौन से हो गए? जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का एक सेक्टर है, फुटवेयर है, क्लोथिंग है, टेक्सटाइल है. ये सारे ना लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स माने जाते हैं. लेबर इंटेंसिव का मतलब जिनमें ज्यादा से ज्यादा लेबर फोर्स की जरूरत होती है. दे आर कॉल्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. तो आप उनकी एग्जांपल भी लिख सकते हो. फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल एक्सेट्रा. ये सारे सेक्टर्स को क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स बोलते हैं.
क्या बोलते हैं, फूड सॉरी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो इनमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, इनमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स हमको लॉन्च करने पड़ेंगे। ऑलरेडी हमने कई सारे लॉन्च किए, जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, क्या है बेस्ट, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये वो स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करती है, ठीक है, किनको, जो अनएम्प्लॉयड रूरल हाउस होल्ड्स है, ठीक है। और दूसरा पॉवर्टी एलिवेशन के लिए तो बहुत सारी है, एक एग्जांपल दे सकते हो एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन, जिन्हें घर में टॉयलेट नहीं बनाना है, नहीं बना सकते, बहुत सारा पैसा नहीं है उनके पास, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू सम मनी, कंस्ट्रक्ट अ यूनिट, ओके। एंड जिनके पास घर नहीं है, पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, गवर्नमेंट उसके लिए घर बनवा देगी, ठीक है। सो यू कैन राइट ऑल्सो लॉन्च ऑफ poverty alleviation and employment generation programs, employment generation programs, जिसमें बेस्ट एग्जांपल जो है इस समय महात्मा गांधी एमजी नरेगा और एमजी एनआरईजीए है ना ये, और MGNREGS भी बोलते हैं इसको, नरेगा की जगह एस लगाते हैं एंड पे, वो स्कीम हो जाता है, ए लगा दिया तो एक्ट हो जाता है, ठीक है। इस बार के बजट में 600 करोड़, इसका 1/3 बजट काट दिया गया, 2/3 बजट अभी भी दिया गया इसको। तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ नहीं जा रही है, जा रही है, बट दूसरे सेक्टर्स में। ये जो है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप ऐसा बेसिक जानते हो प्लस इकोनॉमिक सर्वे और बजट जानते हो, तो इकोनॉमिक्स में है क्या, लेकिन ये बेसिक्स इतना रिफाइंड वे में किसी बुक में मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का क्लास का समय समाप्त होता है, ठीक है।